A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that in the last class we have started a new chapter of your microeconomics, that is consumer equilibrium. So in the last class we have already completed the topic that is what is the meaning of the consumer. Next we have started the consumer behavior in the cardinal utility. We have discussed what is utility, what are the different features of the utility, and what are the different types of the utility, that is cardinal utility and the ordinal utility. So till here we have already discussed in the last class. In today's class we are going to start the new concept, that is concepts of the utility. So in which we will discuss about the total utility and the marginal utility. So let's get started. So in the topic that is concept of utility. So utility we have already discussed in the last class, that is utility is the want satisfying power of the any commodity. Utility is the want satisfying power of the any commodity is known as the utility. And utility is of two types, that is cardinal utility and the marginal utility. Cardinal utility is expressed in the numeric terms, in the quantitative, whereas ordinal utility are expressed in the qualitative terms, that in which we have given the rank or the order, like first preference, second preference, third preference and the fourth preference. But in the case of the cardinal utility, we have given the 1, 2, 3, 4. And the cardinal utility is given by the Marshall and the ordinal utility is given by the Hicks and Allen. So in the ordinal utility we will also discuss the topic or the concept, that is indifference curve. So after these topics. So let's start with the concept of the utility. So there are two types of the utility, in which we will discuss the two types of the utility. Utility क्या होती है? Two types की होती है. First होता है that is total utility. Total utility. And the second one is that is marginal utility. So two concepts are there, that is total utility and the marginal utility. ठीक है? Utility क्या होता है? Utility is the want satisfying power of the any commodity. ठीक है? और utility के concept में हम दो पढ़ेंगे कि ये total utility क्या होता है और marginal utility क्या होता है. ठीक है? Utility मतलब कुछ भी commodity हम consume कर रहे हैं तो उस commodity में कितनी power है कि वो हमको कितना ज़्यादा satisfaction दे रहा है. Total utility simply means if we consume the 10 commodity. अगर हम लोग 10 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मीन्स we will see the changes between when we changes the units of the commodity. For example, if we consume one commodity, we get the 10 total utility. Second commodity, we get the 8 utility. Third commodity, we get this 7 utility. Okay? तो marginal utility क्या होगा कि अगर एक commodity consume किया हमने तो हमें 10 utility मिलती है. सेकेंड commodity को consume करने में हमें 8 utility मिलती है. That means कि अगर फर्स्ट यूनिट में तो हमें 10 मिला, बट जैसे ही हमने एक यूनिट्स को बढ़ाया तो उसमें टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस आया. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा की फर्स्ट स्लाइस हम लोगों ने खाई, ठीक है, हमें कुछ उसको हम लोग न्यूमेरिक टर्म्स में दे देते हैं, डैट इज हमें 10 यूटिलिटी मिली. ठीक है, पिज्ज़ा की पहली स्लाइस खाएंगे तो हमें 10 यूटिलिटी मिली. सेकेंड स्लाइस खाएंगे, आप हमेशा देखिएगा कि जो सेटिस्फेक्शन फर्स्ट यूनिट देती है वो सेटिस्फेक्शन कभी भी आपको सेकेंड यूनिट नहीं देगी. कैसे? जब भी आपको एक बर्गर दे दिया जाए, पूरा एक वो जो बर्गर किंग का वो महाराजा वाला बर्गर होता है ना, खूब बड़ा वाला, वो आप अच्छे से खाओ,
बट जब जैसे ही आपको सेकेंड यूनिट बोल दिया जाए कि एक और बर्गर खाना है, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको पहले वाले में मिलता है ना, हाँ ये बर्गर खा के अच्छा लगा, बट जैसे ही सेकेंड बर्गर खाते हैं इतना मन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो नीड और सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल हो चुकी होती है ना। तो ये जो चेंज हुआ, मतलब पहली यूनिट पे अगर एग्जाम्पल अगर ले लीजिए कि हमें 10 यूटिलिटी मिल रही है, सेकेंड हम लोग ने बर्गर खाया तो हमें उससे कम मिलेगी क्योंकि उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो पहले और दूसरे पिज्ज़ा या बर्गर में जो सेटिस्फेक्शन मिला उन दोनों के चेंज को ही हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फर्स्ट बर्गर खाया तो हमें 10 टोटल यूटिलिटी हमें 10 मिलेगी, सेकेंड बर्गर खाया तो उससे कम मिलेगी। तो इन दोनों में कितना चेंज हुआ, 10 - 8 दैट इज 2। फिर सब लोग बोल रहे नहीं एक और, अब ये फिर एक लोग बोल रहे कि नहीं एक और बर्गर मेरी साइज से खाओ, फिर आपको तीसरा बर्गर मिल गया खाने को, अब कैसे खाएंगे? अब फिर एक बर्गर और मिल गया, अब एक बर्गर और खा रहे हैं, तो अब उससे क्या हुआ, थर्ड यूनिट हम लोगों ने कंज्यूम की, तो हमारा जो भी हमें यूटिलिटी उससे मिल रही थी वो और कम हो गई। तो ये वो कितनी हो गई, वो हमें 8 - 7 कितना बचा, 1। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम लोग 4 यूनिट खाएंगे तो टोटल यूटिलिटी 7 सेम मिल रही है। फिर ऐसा टाइम आएगा कि अगर 4 पिज्जा भी हमें दे दिया जाए या 4th बर्गर दे दिया जाए तो अब हम लोग को कोई भी यूटिलिटी नहीं, मतलब अब उस बर्गर में इतनी पावर नहीं है जो हम लोग की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। उस केस में क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो पिज्जा और बर्गर हम लोग खा रहे हैं वो 0 हो जाता है। भले हम 4th यूनिट बर्गर की खाएं बट हमें उससे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन हमें फर्स्ट वाला दिया ना, इसको पहला 10 ही लेते हैं या डैश भी कर सकते हैं, ठीक है, जो सेटिस्फेक्शन हमें ये पहला वाला बर्गर दिया ना वो उस 4th वाले बर्गर में इतना मजा नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब 5th यूनिट खाने को मिलेगी तो ये टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, दैट इज 5, वी कैन टेक एज दी 8 और दी 7। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी सिचुएशन आती जाएगी जब ऐसा होगा कि हम लोग खा तो रहे हैं बर्गर और पिज्जा, हम लोग का जो सेटिस्फेक्शन है इट विल गोज टू दी निगेटिव, वो निगेटिव होता चला जाएगा। अब अगर हम लोग इन रियलिटी बात करते हैं तो हम लोग कैसे कहेंगे कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो निगेटिव है? इसीलिए मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज ऑल इमेजिनरी कंडीशन में बनाया गया है। हम लोग ने, अगर आप रियलिटी में देखोगे तो वही चीज़ होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा थर्स्टी रहो, घर पे आते हैं हम लोग कहते हैं पानी पीना है, तो एक फर्स्ट ग्लास जो पानी हम पीते हैं जो सेटिस्फेक्शन हमें देता है, बट सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर वो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देता है जितना हमें फर्स्ट ग्लास ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देता है। घर वाले हम लोग आजकल बहुत मान रहे हैं तो हम लोग को क्या करें, खूब सारा सिल्क लेकर आ जा रहे हैं, डेयरी मिल्क सिल्क। एक बोला, पापा ने बोला ये लो एक सिल्क खाओ, डेयरी मिल्क खा लिया खूब मस्त अच्छे से। अब मम्मी कह रही नहीं एक और सिल्क खाओ, आप लोग क्या कहोगे, अरे नहीं अभी नहीं, आप नहीं खा सकते इससे ज़्यादा, क्योंकि अब हम लोग का मन नहीं कर रहा है। तो पहला अगर आप खाए, ठीक है, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन फर्स्ट वाले सिल्क में मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन इनकेस आप खा भी लेते हो ना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो फर्स्ट चॉकलेट बर्गर खाने पे जो सेटिस्फेक्शन मिला, सेकेंड बर्गर और चॉकलेट खाने पे जो हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिला, तो फर्स्ट और सेकेंड में जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आप लोग की डेली लाइफ से दे दिया कि आप डेली लाइफ से उसको अपने आप को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यही कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दी, हम लोग एक टेबल भी लेंगे और उसका एक डायग्राम और ये सब कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डील विद दी दैट इज टोटल यूटिलिटी। Okay, so it is defined as, so put down the heading that is total utility. So it is defined as the total psychological satisfaction. Psychological means mental. ठीक है, वो satisfaction a consumer derive from the consumption of the certain amount of a commodity. ठीक है, एक ये mental satisfaction, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं ना हमारा मन नहीं कर रहा,
मन मतलब हम लोग अपने मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। कंज्यूमर डिराइव करता है फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी, कि कंज्यूमर कहाँ से वो सेटिस्फेक्शन लेता है, जब कंज्यूमर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करता है। कुछ भी सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूमर जब कंज्यूम करता है, उस लेवल पे उसको जो भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज कॉल्ड दी टोटल यूटिलिटी। सो मैथमेटिकली TU, इसको हम लोग इन शॉर्ट लिखेंगे आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे, अब शॉर्ट में पढ़ेंगे, दैट इज TU। So TU is the aggregation. Aggregation means it is the summation, sum total of. So TU is the aggregation of the marginal utility. जो भी marginal utility है उसका ये aggregation होता है। कैसे होता है अभी वो भी पढ़ेंगे। So TU is equal to MU1, MU2, ठीक है, प्लस और सारे MU till MUN, ठीक है। अगर आप लोग ये सोचो, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि 10, 8, 7 और इधर निकाला था 10, 2, अगर ये जो सारे थे 10, 2 और ये सब कुछ करते जाएंगे तो हम लोग उनकी एडिशन या सब कुछ से हम लोग टोटल यूटिलिटी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं। इधर हम उन लोगों को प्लस कर देंगे तो वी गेट दी टोटल यूटिलिटी। तो एग्रीगेशन टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज द एग्रीगेशन ऑफ द मार्जिनल utility and which is derived from the consumption of the different unit of the commodity। और वो कहाँ से मिलता है कि हम different commodity को consume करते हैं, जो भी हमें satisfaction मिलता है, that is called the total utility। next आता है that is marginal utility। marginal utility, ठीक है। so it is an addition made to the total utility by consuming an additional unit of a commodity, or it is the additional utility derived from the consumption of the one more unit of the given commodity। so no, don't need to be nervous ये statement सुन के। it is an addition, ये क्या होता है? एक addition होता है, add होता है to the total utility। total utility में by consuming, जब हम consume करते हैं एक addition unit मतलब फर्स्ट पिज्ज़ा खाया फिर सेकेंड पिज्ज़ा खाया, और इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी, जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब पहले हम लोग खाए थे तो एक यूटिलिटी मिली, सेकेंड खाए तो कुछ यूटिलिटी मिली फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द वन मोर यूनिट। फर्स्ट पिज्ज़ा खाया, सेकेंड पिज्ज़ा खाया, तो सेकेंड पिज्ज़ा खाने पे, थर्ड पिज्ज़ा खाने पे, फोर्थ पिज्ज़ा खाने पे कितना हम लोग को एडिशन यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल यूटिलिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो MU इज इक्वल टू क्या होता है? MU इज इक्वल टू TUN। TU यहाँ पे क्या है? दैट इज टोटल यूटिलिटी ऑफ द nth टाइम, मतलब फर्स्ट वन माइनस TUN माइनस 1 फ्रॉम प्रीवियस वन। जैसे हम लोग हमेशा मैथ्स और ये सारी चीजों में पढ़ते हैं ना, n करंट ईयर को लेते हैं, n-1 प्रीवियस ईयर को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये डेटा होगा उसका करंट वाला और जो पहले वाला होगा उसको माइनस करेंगे, सो वी गेट दी वैल्यू ऑफ दी मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी। और इसको TU को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो TU इज इक्वल टू दी समेशन ऑफ MU। जो हम लोग इसको सम कर रहे हैं ना, यहाँ पे सब तो सम कर रहे हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? टोटल यूटिलिटी इज दी समेशन ऑफ दी मार्जिनल यूटिलिटी। सारे मार्जिनल यूटिलिटी को हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब जितनी भी कमोडिटी हम लोगों ने कंज्यूम की, 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे, 3 यूनिट पे, 4 यूनिट पे, जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की, हमें कितना पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड दी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब हम लोग ने एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया तो जो भी एक एडिशन हम लोग को एक कंजप्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक हम लोग क्या लेंगे? एक टेबल लेंगे, टेबल के थ्रू हम लोग इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसको एक और भी फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज यस MU इज इक्वल टू चेंज इन दी टोटल यूटिलिटी, दैट इज चेंज इन दी क्वांटिटी। ये अभी जब आगे हम लोग अभी इसको अच्छे से देखेंगे, बट यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपीज। आप इसको लिखते चलिए कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमें यहाँ पे X कमोडिटी का निकालना है, X का, यहाँ पे X क्या शो कर रहा है, दैट इज X कमोडिटी, तो हम क्या करेंगे? ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा इट शोज दी चेंजेस, चेंज,
ये चेंज शो करता है। तो चेंज इन दी टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय दी चेंज इन दी टोटल क्वांटिटी ऑफ दी एक्स कमोडिटी। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो टेक एज स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसका यूज आता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक टेबल के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट करना पहले सीखते हैं। पहले हमें इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। ओके, तो यहां पे दिया है क्वांटिटी ऑफ दी एनी कमोडिटी। यहाँ पे एक हम लोग जैसे मैथ्स में या कहीं पे भी एक्स और वाई अज्यूम कर लेते थे ना, यहाँ पे भी क्वांटिटी हम लोग किसकी अज्यूम कर ले रहे हैं, दैट इज एक्स कमोडिटी है कोई। यहाँ पे आप कोई एप्पल या कोई भी क्लोथ, इट इज अप टू यू, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक्स कमोडिटी ले लिया। ठीक है, जब भी आपको ऐसे कैलकुलेशन करने को आएगा, सो वन आइटम इज टू बी गिवन। यहाँ पे एक आइटम दिया रहेगा, दैट इज उसमें टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीयू है और इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट दी एमयू फ्रॉम दी फॉलोइंग्स। आपको यहाँ पे एमयू कैलकुलेट करना है। तो टोटल क्वांटिटी इज गिवन, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दिया है। ओके, टोटल यूटिलिटी क्या क्या दिया रखा है, 10 19 27 34 40 एंड 38। अब आपके पास आपकी बुक में और आपकी कॉपीज में फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है। अब इसको क्या था कि जब हम लोग को एमयू निकालना है, सो विच इज इक्वल टू दी टीयू एन माइनस -1। चलिए देखते हैं कैसे। पहले यूनिट पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, इसके पहले कुछ भी आइटम नहीं है, 1 के पहले कोई भी आइटम नहीं है, 10 के पहले कोई आइटम नहीं है, तो पहले भी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि एमयू कैसे निकालेंगे, TUN माइनस -1, TUN माइनस -1, ये आपका हो गया n-1 ऊपर वाला। तो 19 माइनस 10 विच इज इक्वल टू दी 9। नेक्स्ट है TUN माइनस -1, 27 माइनस 19, 34 माइनस 27, 40 माइनस 34, 38 माइनस 40। सो कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यू। पहला क्या होगा, 27 माइनस 19, 8 7 6 और -2। अब जब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 6 यूनिट। जब हम लोग, आप एग्जांपल ले लीजिए, जब हम लोग 6th बर्गर खा रहे हैं, सोच लीजिए 5 बर्गर ऑलरेडी खा चुके हैं, 6 बर्गर खा रहे हैं ना, तो उसमें जो हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो किस में चली गई, निगेटिव में चली गई है। समझ लीजिए, मतलब पहले तो हम लोग को देखिए शुरू में जो पहला पिज्जा खाया, तो पहला बर्गर खाया, तो हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज्यादा मिल रही थी, दैट इज 10। बट जैसे ही हम लोग ने उसकी यूनिट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया बर्गर की, उसके बाद से देखिए जो भी सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा था पर यूनिट, वो क्या था, 10 9 8 7 कम होता चला जा रहा था। और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब हम लोग पिज्जा खा भी रहे हैं, बर्गर खा भी रहे हैं, तो हमको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो यूटिलिटी मिल रही है, वो कितनी है, -2 हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड दी हाउ वी कैलकुलेट दी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या है, बस ये दिया है 10 9 8 7 6 -2, तो कैसे हम निकालेंगे, आपको याद है अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, TU इज द समेशन ऑफ द MU। अगर आप जस्ट इसको आप लोग इग्नोर करिए, ये नहीं है आपके पास क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी दी है और MU दिया है, आपको बोला है कि कैलकुलेट TU, तो TU इज द समेशन ऑफ द MU। तो पहला 10, देन 10 प्लस 19 प्लस 8, फिर उसके बाद
19 प्लस 8 प्लस 7 जितना भी आएगा, फिर 19 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 देन प्लस माइनस 2 दैट इज 38। तो अगर ये रहेगा तो हम ये निकाल सकते हैं, ये रहेगा तो हम ये निकाल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों फॉर्मूला आपके पास गिवन है। सो mu इज इक्वल टू TUn माइनस TUn माइनस 1 और TU कैलकुलेट करना है विच इज द समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। गॉट इट? ठीक है, चलिए एक और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? यस, कैलकुलेट mu फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको mu कैलकुलेट करना है। सो राइट डाउन कैलकुलेट marginal utility from the following. Calculate marginal utility from the following. ठीक है, और yes, so the data is given here like quantity consumed of x, quantity दे रखी है और क्या दे रखा है आपके पास? TU दे रखा है, टोटल यूटिलिटी दे रखी है। क्वांटिटी क्या है? 1 2 3 4 and 6। ठीक है, 1 2 3 4 and 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग को थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रही होगी। क्या लग रही है? पहले मैं डेटा लिख देती हूँ तब बता दूँ। 40 60 78 94 and 108। ठीक है, यहां पे एक चीज स्ट्रेंज क्या लग रही होगी कि फर्स्ट क्वांटिटी दिया है, सेकेंड क्वांटिटी दिया है, थर्ड क्वांटिटी दिया है, फोर्थ क्वांटिटी दिया है एंड फिफ्थ क्वांटिटी इज मिसिंग। यहाँ पे फिफ्थ क्वांटिटी मिसिंग है ना? तो अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। पहले सबसे पहले जहां तक ये जो क्वांटिटीज कंटिन्यूअस है पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं mu। तो पहली क्या हो जाएगी आपकी? फर्स्ट विल बी द 40 क्योंकि इसके पहले कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड क्या होगा? 60 माइनस 40 दैट इज 20। सेकेंड थर्ड वन इज थर्ड यूनिट पे TU कितना है? 78। 78 माइनस 16 दैट इज 18। फोर्थ यूनिट पे कितना है? 94। 94 माइनस 78 दैट इज 60। अब बात आती है कि सिक्स्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट दिया होता तब तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते माइनस करके, बट सिक्स्थ यूनिट हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करें? तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया था, आप लोग को अभी पीछे देखिएगा, दैट इज mu इज इक्वल टू mu x इज इक्वल टू डेल्टा TU ऑफ x कमोडिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द x कमोडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल्टा कैसे शो करते हैं? डेल्टा मतलब चेंज कैसे शो करते हैं? इसके पहले वाला आइटम क्या है? दैट इज 108 माइनस 94। यस, 108 माइनस 94 ये डेल्टा शो कर दिया हम लोग ने, चेंज TU निकाल लिया ना। कैसे निकाला? 108 यहाँ पे दे रखा है और 94। अब डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी कैसे करेंगे? तो क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है? 6 माइनस 4। क्वांटिटी देखिए 6 4 माइनस करने में कितना आ रहा है? दैट इज 14। तो आपका mu क्या हो गया? 6 यूनिट पे दैट इज 7। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 7। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। देखिए
यहाँ पे था mu कैलकुलेट करना था। तो इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन हम लोग ने देखा था वो क्या था, वो यही कह रहा था ना कि हम लोग को यहाँ पे ये सारी क्वांटिटी दे रखी है, टोटल यूटिलिटी दे रखा है और मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ने अभी तक डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया क्योंकि यूनिट्स क्या थी, वो कंटिन्यूअस थी, 1 2 3 4 5 6 थी। बट अब यहाँ पे देखिए एक यूनिट मिसिंग है। अब मिसिंग है तो हमें तो भी निकालना पड़ेगा कि कितना चेंजेस आया था। तो उसके लिए यहाँ तक तो हम लोगों ने नॉर्मली वही माइनस करके निकाल लिया। बट अगर 6 यूनिट पे निकालना है तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी विच इज इक्वल टू दी चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी। तो टीयू मतलब चेंज अगर हम लोग को टीयू में निकालना है तो चेंज मतलब कि प्रेजेंट वन और द प्रीवियस वन। तो प्रेजेंट वन कितना है 108 माइनस 94 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, तो 6 माइनस 4। सो 108 माइनस 94 दैट इज 14 एंड 6 माइनस 4 दैट इज 2। अब इन दोनों को डिवाइड करके सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू दी 7। सो इट इज योर कंप्लीटेड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जहां पे आपको कह रहा है कि क्वांटिटी दे रखी है और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसी में हम लोग इसमें द यूनिट इज 1 2 3 4 5 6 7। Calculate TU from the follows। आपको यहाँ पे TU कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 5 6 एंड 7। ठीक है, 7th यूनिट तक हो गया यहाँ पे। अब देखिए टेबल दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ये है आपका 10 8 6 4 2 0 -2। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। यू हैव 30 सेकेंड्स, आपके पास 30 सेकेंड है। उसके बाद मैं करूंगी टोटल यूटिलिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी एंड यू हैव टू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यू हैव 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट है, इसको कैलकुलेट करिए। कुछ नहीं है, टोटल यूटिलिटी रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस करके निकाल देते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी दिया है, टोटल यूटिलिटी निकालना है तो उसमें प्लस करके निकालना है। चलिए, टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? पहला क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम है। नेक्स्ट कह रहा था कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। तो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, यस 24, 24 प्लस 2 सॉरी 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 ना, 30, 30 प्लस 0 दैट इज 30। अब 30 माइनस, ये माइनस में है, -2 दैट इज 28। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, 10 18 24 28 30 30 28। अब ये डेटा ये बता रहा है, अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जब फर्स्ट यूनिट हम कंज्यूम किए 10 मिला, सेकेंड यूनिट मिले कंज्यूम किए तो 8 यूटिलिटी मिली मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड किए तो 6, फोर्थ किए तो 4, 5 किए तो 2। जब हम लोग 6th यूनिट एक बर्गर की खा रहे हैं तो हम लोग को 0 यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कुछ भी नहीं असर हम लोग पे कर रहा है। अब निल हो गया। और फिर जब 7th यूनिट में हमें दे दिया गया बर्गर की, तो अब जो हमको उससे सेटिस्फेक्शन पावर, जो भी उस बर्गर और पिज्जा की पावर है वो अब हम लोग को निगेटिव में जा रही है, मतलब अब उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो हमें सेटिस्फाई
कर सके. सो दिस इज ऑल योर टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी होता है जब हम लोग कोई एडिशनल यूनिट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो जो भी एडिशन में हमको यूटिलिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल. जैसे हम लोग अगर 1 यूनिट किए तो हमें 10 मिला, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए तो 18 मिला. तो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने में और फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने में जो भी डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड दी मार्जिनल यूटिलिटी.